Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will start next chapter of this ecology, that is ecosystem. Ecosystem is the functional unit of nature. It is the functional unit of nature wherein living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment. ये जो इकोसिस्टम है ये एक फंक्शनल यूनिट है. इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर. ये एक यूनिट है नेचर का, फंक्शनल यूनिट, यहाँ जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इर्द गिर्द का जो फिज़िकल एनवायरनमेंट है उसके साथ वो इंटरेक्ट करते हैं. It is the functional unit of nature wherein living organisms interact among themselves. एक तो उनके बीच में क्या क्या इंटरेक्शन होती हैं और इनका जो सराउंडिंग्स है उसके साथ उनका क्या वास्ता होता है, किस तरह से वो बिहेव करते हैं. जो ये इकोसिस्टम है, it is self-regulated and self-sustaining structural and functional unit of landscape. इकोसिस्टम जो है ये सेल्फ रेगुलेटेड है और सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लैंडस्केप का है. इकोसिस्टम सेल्फ रेगुलेटेड और सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लैंडस्केप या बायोस्फीयर का ये मान लेंगे हम सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसमें कम्युनिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और इसका फिजिकल एनवायरनमेंट होता है जो इंटरेक्ट करते हैं और जिनके बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है. दिस इकोसिस्टम, सो वी कैन से दैट इकोसिस्टम इज ए सेल्फ रेगुलेटिंग and self-sustaining structural and functional unit of landscape or biosphere. Self-regulating and self-sustaining structural and functional unit of biosphere consisting of community of living beings, जिसमें living beings की community होती है और फिज़िकल एनवायरनमेंट उनका होता है जो इंटरेक्ट करते हैं और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स उनके बीच में होता है. एक्चुअली जो ये वो वर्ड इकोसिस्टम ये टेनिसली ने दिया था. फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1935 द वर्ड इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय टेनिसली इन 1935. अब इकोसिस्टम की ग्रुपिंग्स हैं. टेरेस्ट्राइल या लैंड इकोसिस्टम, लैंड या टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इज एन इकोसिस्टम, डेजर्ट इज एन इकोसिस्टम, गार्डन इज एन इकोसिस्टम, जो खुश्की में होते हैं इकोसिस्टम्स. एक्वेटिक और वाटर इकोसिस्टम, एक्वेटिक्स में हमारे पास फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं. These are aquatic और water ecosystems. जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है वो क्या होता है, which develops in nature. Natural ecosystem is one which develops in nature, which is independent of human interference. उसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता है. अब दूसरा है मैन मेड इकोसिस्टम और जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम, which is developed and maintained by human beings. The ecosystem which is developed and maintained by human beings is called man-made or artificial or anthropogenic ecosystem. So far as size is concerned, small ecosystem is called a micro ecosystem. For example, pond is a micro ecosystem. जब वेरी स्मॉल इकोसिस्टम इज कॉल्ड एन नैनो इकोसिस्टम. नैनो इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल एक्वेरियम हमारे पास होता है या ए लॉग ऑफ वुड, वो भी एक इकोसिस्टम है जिस पर बाकी ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हैं. दैट इज़ आल्सो एन इकोसिस्टम. अब बहुत बड़ा इकोसिस्टम दैट इज़ ओशन, दैट इज़ कॉल्ड मेगा इकोसिस्टम. Then
meso ecosystem, that is forest is an example of meso ecosystem. A global ecosystem, biosphere, whole this earth which supports this life, this is called global ecosystem. Ecosystem is an open system. It is an open system in which input is solar energy and matter, inorganic, and what it gives out is productivity, that is output. So, this ecosystem is an open system. It has input in the form of solar energy and matter, that is inorganic substances, and it gives productivity or output, that is it is productivity. An ecosystem maintains its homeostasis or biological equilibrium. Uh, it maintains a functional balance or relatively stable state of equilibrium. Ecosystem maintains a functional balance or relatively stable state of equilibrium among its various components. मुख्तलिफ components के बीच में ये maintain करता है एक equilibrium. इसको इसी प्रोसेस को इसी फिनोमेनन को कहते हैं होमोस्टेटस और बैलेंस इन नेचर. जो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के बीच में, दैट इज़ कॉल्ड होमोस्टेटस और बैलेंस ऑफ नेचर. ये इकोसिस्टम की एक प्रॉपर्टी है. अभी आपने जो साइज पढ़ा, सो फॉर एज साइज इज कंसर्न, इकोसिस्टम्स वेरी फ्रॉम स्मॉल टू वेरी स्मॉल टू मेगा और ग्लोबल इकोसिस्टम्स. इकोसिस्टम is an open system. It has input as well as output. Input is in the form of solar energy and matter, inorganic, and productivity is in the form of output or organic matter. It maintains homeostasis or biological equilibrium. It maintains a functional balance or relatively stable state of equilibrium. इसमें स्टेबल स्टेट होता है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के बीच में, इसको कहते हैं होमोस्टेटस और बैलेंस ऑफ नेचर. This balance is not static, it is dynamic. It fluctuates within certain limits. This balance fluctuates or changes but within certain limits. जो ये होमोस्टेटस होता है एक इकोसिस्टम में, इट इज़ मेंटेन्ड थ्रू ए नंबर ऑफ कंट्रोल्स. These important controls are carrying capacity of the environment. Carrying capacity क्या होगी? How much it can support, how much living organisms or how much members of a particular species the environment can support. This is called carrying capacity. It is responsible for homeostasis. कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम फॉर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट्स. इसमें कितनी कैपेसिटी है रिसाइकलिंग के लिए, ये भी एक अहम मसला है. सेल्फ रेगुलेशन थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ डेंसिटी ऑन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल. जो सेल्फ रेगुलेशन इसमें होगी, जो इफेक्ट्स होते हैं इसमें डेंसिटी या ऑफ ऑन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल पर क्या असर होगा डेंसिटी का. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में वो फ्लोर बीटल का, उनकी नंबर कैसे तादाद के साथ साथ जब नंबर बढ़ती थी तो उनके एग्स कम होते थे. नंबर 4 इज़ फीडबैक सिस्टम. इसमें कैसा फीडबैक होगा, हाउ वन लिविंग कंपोनेंट कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ अदर लिविंग कंपोनेंट. इसका असर क्या होगा, वो जो ये होमोस्टेटस है ये इन फैक्टर्स की वजह से कंट्रोल होता है. दीज फैक्टर्स, नंबर 1 इज़ कैरिंग कैपेसिटी, नंबर 2 इज़ कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम फॉर रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट्स, नंबर 3 इज़ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन थ्रू इफेक्ट्स ऑफ डेंसिटी ऑन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, नंबर 4 इज़ फीडबैक सिस्टम, how one living component controls the population of other. जो ये feedback system होता है एक ecosystem में, it is of two types. One feedback is of positive, एक feedback होता है positive, दूसरा होता है negative.
पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट्स की नंबर इंक्रीज हो जाएगी तो हर्बिवोरस इंसेक्ट्स जो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जो हर्बिवोरस इंक्रीज हो जाएंगे इन इंसेक्ट्स, तो पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग प्रीडेटर्स, प्रीडेटर इंसेक्ट्स और इंसेक्टिवोरस बर्ड्स वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जब ये वाला प्लांट इंक्रीज होगा, इंसेक्टिवोरस वो हर्बिवोरस इंसेक्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे। फिर इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग प्रीडेटर इंसेक्ट्स, जो फ्रॉग प्रीडेटर इंसेक्ट्स होते हैं इनकी पॉपुलेशन और इंसेक्टिवोरस बर्ड्स की इंक्रीज हो जाएगी। दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट level organisms with increase in population at the lower level of food chain is called positive feedback। इसी को पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। यहाँ इंक्रीज हो गई, इससे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक ये इंक्रीज हो गई, बेसिक लेवल में इंक्रीज हो गई, तो ये टॉप पर भी इंक्रीज हो गए, इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। अब अगर हम ये रिवर्स डायरेक्शन में लेंगे, जो इंक्रीज पॉपुलेशन इंसेक्टिवोरस एनिमल्स की होती है would however soon exert a negative feedback on the population of herbivorous insects। जो ये इंसेक्टिवोरस हैं यहाँ, इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट्स इनकी पॉपुलेशन जब बढ़ जाएगी तो ये नेगेटिव फीडबैक पॉपुलेशन ऑफ हर्बिवोरस इंसेक्ट्स इन पे करेगा रिवर्स डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, जब इनकी तादाद बढ़ जाएगी इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट्स की, तो नेचुरली जब ये ज़्यादा हो जाएंगे इनका असर हर्बिवोरस इंसेक्ट्स पर पड़ेगा थ्रो प्रीडेशन, एक्सेसिव प्रीडेशन होगी, इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। अब आपने पढ़ा कि जो ये होमोस्टेटस होता है, ये चार चीज़ें इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। कैरी कैपेसिटी जो होती है इको एनवायरनमेंट की, नंबर वन वो। नंबर दो, कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम फॉर रिसाइकलिंग, वो रिसाइकलिंग कितनी होगी। नंबर तीन, सेल्फ रेगुलेशन थ्रू द इफेक्ट ऑफ डेंसिटी ऑन रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, सेल्फ रेगुलेशन कितनी होगी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या होगा। फॉर एग्जांपल फ्लोर बीटल में आपने पढ़ा था। इसी तरह फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक में आपने पढ़ा जब बेसिक लेवल पे इंक्रीज होता है तो ये टॉप पे भी इंक्रीज होगी, इसको पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये है जब टॉप पे इंक्रीज हो गई, फॉर एग्जांपल दीज insectivorous insects, these will predate on herbivorous insects, this will lead to decrease in number of herbivorous insects, this is called negative feedback। अब हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इकोसिस्टम के दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक में आते हैं लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, एबायोटिक में आते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो ये लिविंग कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के होते हैं वो कनेक्ट होते हैं थ्रू फूड। बायोटिक कंपोनेंट्स इन एन ecosystem are connected through food prepared by autotrophs, जो प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोट्रॉप्स वो फूड तैयार करते हैं इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स से विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, उनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। फूड इज prepared by autotrophs from inorganic raw materials, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स के ज़रिए वो फूड तैयार करते हैं, उनको कहते हैं प्रोड्यूसर्स। जो बाकी ऑर्गेनिज्म्स हैं जो फूड नहीं तैयार करते हैं उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स और कंज्यूमर्स, उनको कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं दैट आर ऑफ टू टाइप्स, हेटेरोट्रॉप्स और ऑफ टू टाइप्स। वन इज कंज्यूमर्स, जिनको हम हर्बिवोरस भी कह सकते हैं, दूसरा होता है डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स। अब आपने पढ़ा लिविंग कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के
या बायोटिक कंपोनेंट्स, उसमें आते हैं ऑटोट्रॉपस भी और हेटेरोट्रॉपस भी। ऑटोट्रॉपस जो फूड मटेरियल तैयार करते हैं और उनको प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। अदर ऑर्गेनिजम्स जो फूड नहीं तैयार करते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनको हेटेरोट्रॉपस कहते हैं। हेटेरोट्रॉपस दो किस्म के होते हैं, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, ये इनको ऑटोट्रॉपस बोलते हैं या ट्रांसड्यूसर्स। These are autotrophs or transducers food. They prepare food, they maintain oxygen and CO2 balance. These autotrophs maintain oxygen and CO2 balance. Major producers are in this biosphere are algae, bryophytes and vascular plants. Algae, bryophytes and vascular plants are major producers. Phytoplanktons. Phytoplanktons are small photosynthetic organisms produce uh, food in aquatic ecosystem. जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म, स्मॉल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, दीज प्रोड्यूस फूड इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। दूसरा होता है मैक्रोफाइटस, स्मॉल प्लांट्स जो शेलो वाटर में फूड तैयार करते हैं, शेलो वाटर में। अब जो ये कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं? दीज आर हेटेरोट्रॉपस। ये इंजेस्ट करते हैं फूड मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स, सो कॉल्ड फैगोट्रॉप्स। इनको फैगोट्रॉप्स भी बोलते हैं। दीज इंजेस्ट फूड मटेरियल विच इज प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। There are two broad categories of these heterotrophs. One is herbivore, another is carnivore. Herbivores obtain food and energy directly from plants. जो herbivores होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स से ये अपना फूड हासिल करते हैं, उनको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स भी। दे आर आल्सो कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स। फॉर एग्जांपल डियर है, रैबिट है, माउस है, स्कैरल है, ग्रास होपर है, बीटल्स हैं, गोट है, कैटल है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। ये ऑर्गेनिजम्स, इनको हर्बीवोर्स कहते हैं जो घास वास खाते हैं। अब इक्वेटिक हैबिटेट में क्रस्टेशियंस होते हैं, मोलस्क्स होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, वो इक्वेटिक इकोसिस्टम में होते हैं हर्बीवोर्स। अब कार्निवोरस क्या होते हैं? कार्निवोरस आर द ऑर्गेनिजम्स विच प्रे ऑन एनिमल्स। जो आपने प्रीडेशन पढ़ा, ये प्रे करते हैं, ये खाते हैं एनिमल्स को। Those carnivores which feed on herbivores are called primary carnivores. कार्निवोरस में वो कार्निवोरस जो एनिमल्स को खाते हैं उनको प्राइमरी कार्निवोरस या सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स। सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर्स थे हर्बोवर, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स हैं ये कार्निवोरस। फॉर एग्जांपल फ्रॉग है, सेंटीपीड है, बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, वाइल्ड कैट है, जैकॉल, फॉक्स, स्नेक एट्सेट्रा। दीज आर प्राइमरी कार्निवोरस और सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर्स। Those animals which feed on primary carnivores, वो एनिमल्स जो प्राइमरी कार्निवोरस को खाते हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस और थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स। थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स फॉर एग्जांपल ओवल है, पीकॉक है, टाइगर है, लाइन है, उनको कहते हैं थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर्स। थर्ड ऑर्डर क्यों बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर था ये हर्बीवोरस, सेकंड ऑर्डर था कार्निवोरस, थर्ड ऑर्डर था वो कार्निवोरस जो इन पे इन पे फीड करते हैं प्राइमरी कार्निवोरस पे। जो ये सेकेंडरी कार्निवोरस होते हैं, दीज बिकम फूड फॉर टर्शरी कार्निवोरस एंड सो ऑन। ऐसे ये चलता रहता है। वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन बाय अनदर एंड सो ऑन, दिस चेन रिपीट्स। फिर होता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स या रिड्यूसर्स या इनको कहते हैं मिनरलाइजर्स ऑफ दिस बायोस्फीयर। डेट्रीवोर्स भी कहते हैं, सिक्वेंजर्स भी कहते हैं, जो फिर
ان آرگنزمز کو آفٹر ڈیتھ ڈیکمپوز کرتے ہیں اور وہ واپس زمین کو سوائل کو منرلز پہنچا دیتے ہیں. دیز آر کالڈ منرلائزرس اور سکوینجرس اور ریڈیوسرس اور ڈیکمپوزرس. یہ ڈپینڈ کرتے ہیں پھر ڈیڈ آرگینک میٹر پہ یہ فیڈ کرتے ہیں. بیکٹیریا ہے, فنجائی ہے, اس میں وہی اس ڈیکمپوزر کیٹیگری میں آتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم ایبایوٹک کمپوننٹس پڑھیں گے اس میں.